Hi student, now today we are going to discuss about the next process of nutrition in case of human. Okay, earlier we just studied about the nutrition in case of amoeba. It is a single celled organism, protozoan. Okay, it shows the holozoic mode of nutrition that we already see. Today we are going to discuss about what type of process of nutrition takes place in case of humans. Humans are also the holozoic organism, those who are showing the heterotrophic holozoic mode of nutrition. Means we are depend on others for getting our food, as well as we are showing the holozoic mode of nutrition. Means we also take the complete solid food inside our alimentary canal or in our digestive system, then digest it, absorb and assimilate. Understood? Means we are showing the holozoic mode of nutrition. In case of human being also, that holozoic mode of nutrition get completed within 5 sub-phases. First is ingestion, then digestion, absorption, assimilation and egestion. ठीक है? Human being shows all these process or all these 5 steps within a single unit of digestion. It is called alimentary canal. ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम देखने के लिए मिलती है. दैट डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग हैविंग 2 पार्ट्स. कौन सा है? एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मतलब क्या और एलिमेंट्री कैनाल मतलब क्या? Alimentary canal, it is a tube-like structure. May it is shallow in some areas, but it is a tube-like structure that having the 2 opening. The first opening it is started in the mouth and another opening at ends at the anus. These are the 2 openings or the 2 ends of the alimentary canal. In rest of that, alimentary canal start at mouth, esophagus, then stomach, then small intestine, large intestine, rectum and anus. These are the parts of alimentary canal. In case of human being, in adult human, near about 9 meter long alimentary canal is present and it is just attached with the associated digestive gland like salivary gland in case of buccal cavity, liver and pancreas. These are the 3 associated digestive glands. Those who are not directly the part of alimentary canal, but they are very essential for their secretions. They secrete the enzymes, those who are essential for the digestion of food and they forward their secretion inside the alimentary canal. ठीक है, pancreas भी अपना secretion alimentary canal में forward करता है, लीवर भी पोर करता है और सलाइवरी ग्लैंड भी माउथ में अपना सिक्रेशन रिलीज करती है. दीज सिक्रेशंस मीन्स दीज एंजाइम्स हेल्पफुल टू डाइजेस्ट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड लाइक प्रोटीन, स्टार्च एज वेल एज फैट्स. ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड that I told, it is the digestive system or the part of digestive system of human being. अब ह्यूमन बीइंग में प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है? ये तो हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स एट माउथ, एंड्स एट एनस. ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया एलिमेंट्री कैनाल का. कितना मीटर है? 9 मीटर्स लॉन्ग है. 9 मीटर्स लॉन्ग में एसोसिएटेड ग्लैंड, एक तो होती सलाइवरी ग्लैंड जो बकल कैविटी में है, सेकेंड है लीवर और तीसरी है पैंक्रियास. तो इन दैट वे दिस ग्लैंड्स पोर देयर सिक्रेशन. यहाँ आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है. लीवर और पैंक्रियास की ओपनिंग डिओडिनम में है, मतलब ये अपने सिक्रेशन यहाँ रिलीज करती है. सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ में प्रेजेंट होती है वो अपने सिक्रेशंस माउथ में फॉरवर्ड करती है. इन दैट वे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन गेट कंप्लीटेड विद इन द एलिमेंट्री कैनाल. फूड बिना डाइजेशन के या फूड एलिमेंट्री कैनाल से बाहर नहीं जाता. बाहर के सिक्रेशन एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं और न्यूट्रिशन की प्रोसेस हो जाती है. तो लेट्स सी विच आर द स्टेप एंड वेयर इट ऑकर्स. देखो, दैट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट स्टार्ट्स एट माउथ. मीन्स फर्स्ट स्टेप है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इंजेशन. इंजेशन मीन्स सिंपली ईटिंग ऑफ फूड और टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द माउथ. ठीक है, इसका मतलब होता है खाने को मुंह के अंदर ले लेना. मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंजेशन इज टेक्स प्लेस इनसाइड द माउथ, मीन्स बकल कैविटी ऑफ अ ह्यूमन. ठीक है, तो बकल कैविटी में मतलब माउथ में प्रोसेस ऑफ इंजेशन हो जाता है. नाउ द
नेक्स्ट स्टेप क्या थी? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एज वी टेक द सॉलिड फूड इनसाइड मींस इट इज नीड टू बी डाइजेस्ट। तो सेकेंड स्टेप है डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन begins inside the mouth itself as we eat the food inside the mouth। जैसे हमने खाने को मुंह में लिया वैसे ही प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है मीन्स इट बिगिंस इनसाइड द माउथ। जनरली इनसाइड द माउथ देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन देखने के लिए मिलता है। टू टाइप ऑफ डाइजेशन मीन्स वन इज physical digestion and second one is chemical digestion। As we taking the solid food inside the mouth, we just chew the food with the help of teeth। हमारे मुंह में जो टीथ प्रेजेंट है बकल कैविटी में, उन टीथ की मदद से हम उस खाने को, सॉलिड फूड को स्मॉलर पीसेस में क्रश करते हैं। मीन्स वी आर चीविंग एंड ग्राइंडिंग द फूड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स, ओके, सॉफ्ट पार्टिकल्स। While chewing the food, salivary gland gets stimulate and secrete their secretion called as salivary amylase। salivary gland के secretion को बोलते हैं salivary amylase। ये amylase जनरली माउथ में ही केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट करता है। देखो, चीविंग ऑफ फूड मतलब फिजिकल डाइजेशन जिसमें कॉम्प्लेक्स लार्ज मॉलिक्यूल और द सॉलिड फूड गेट डिवाइड और कन्वर्ट इनटू smaller pieces, ठीक है। That smaller pieces get digest with the help of chemical digestion that also begins inside the mouth। अब chemical digestion not only takes place inside the mouth but also it is also takes place in the other parts of the alimentary canal। The first part is mouth। माउथ में क्या केमिकल डाइजेशन होता है? देखो, inside the mouth while chewing the food it just releases the secretion of salivary gland and that secretion called salivary amylase। That salivary amylase it is responsible to digest the starch component of a food। फूड में जो भी कार्बोहाइड्रेट है उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को स्मॉल सिंपल ग्लूकोज में या स्मॉल सिंपल शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम सलाइवरी अमाइलेज करता है, ठीक है। Salivary amylase act over the starch, digest the starch into simple sugar like maltose, like सुक्रोज और में ग्लूकोज, ठीक है। इन कंपोनेंट में मतलब डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड में जनरली कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है। एज दैट सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन सिर्फ डाइजेशन ऑफ स्टार्च नहीं है। तो वाइल चीविंग द फूड दैट सलाइवा गेट मिक्सेस विद द फूड, ओके। एक तो है कि वो खाने के साथ जब मिक्स होता है देन इट स्टार्ट टू डाइजेस्ट मीन्स डिग्रेड द कार्बोहाइड्रेट इनटू द सिंपल शुगर, बट इट ऑल्सो मेक्स अवर फूड सॉफ्टर, ठीक है। इतना सॉफ्ट बनाता है, इट मेक अवर फूड सॉफ्टेन। बिकॉज ऑफ दैट वी कैन एबल टू इंजेक्ट सॉलोविंग द फूड इजीली, ओके। वी जस्ट सॉलोड दैट बोलस इनसाइड इसोफेगस, ठीक है। अब नेक्स्ट ओपनिंग है माउथ को, इट इज कॉल्ड इसोफेगस। Esophagus is also known as food pipe। क्या बोला जाता है? Food pipe। It is a simple muscular tube-like structure that attaches the mouth with the stomach, ठीक है। ये माउथ को स्टमक के साथ अटैच करता है। देखो, इसोफेगस में किसी भी टाइप का फिजिकल या केमिकल डाइजेशन नहीं हो रहा है। इसोफेगस never secrete any kind of enzymes for the digestion। It only passes the bolus from mouth to stomach, ठीक है। How it pushes the food inside the stomach while pushing। देखो, esophagus is made of two types of muscles, one is longitudinal and second one is circular। That esophagus shows alternate contraction and relaxation inside that set of muscles। It is called peristaltic movement। That peristaltic movement just pushes the bolus of food inside the stomach at the end of the esophagus। देखो, esophagus में किसी भी टाइप का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, लेकिन स्टमक का जो सलाइवरी अमाइलेज, माउथ का जो सलाइवरी अमाइलेज है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द बोलस ऑफ अ फूड। और ये कंटिन्यू करता है अपना डाइजेशन टिल द फूड इज रीचेस अप टू द स्टमक। जब तक खाना स्टमक में नहीं पहुंच जाता तब तक ये डाइजेशन मतलब सलाइवरी अमाइलेज का एक्शन कंटिन्यू होता है। देन the food is entered inside the J-shaped organ called as stomach, then inside the stomach the food is near about long period of time। मतलब टोटल डाइजेशन को अगर 4 घंटे लगते हैं तो स्टमक में 3 घंटे के आसपास फूड होता है।
द जे शेप ऑर्गन स्टमक इट ऑलरेडी फिल्ड विद द गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है. एज द फूड एंटर्ड हियर देन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्पिनेक्टर एट द ईसोफेगस एंड. इसको बोलते हैं ईसोफेजियल स्पिनेक्टर. ये ईसोफेजियल स्पिनेक्टर अलाउ टू फ्लो द फूड इन अ सिंगल डायरेक्शन. मीन्स as once that food entered in a stomach then the food is not come back to the esophagus again. फिर स्टमक में फूड लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और वहां पे फूड का डाइजेशन होता है. देखो स्टमक सिक्रीट 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस. यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, मतलब वॉल ऑफ स्टमक composed by 3 different layers of cells. These cells are called as gastric cells and secrete the secretion called as gastric juices. These gastric juices are consist that HCl, hydrochloric acid, pepsin and mucus. These are the 3 different secretions of stomach and stomach get filled with it. ठीक है. अब as the food enter in the stomach, HCl क्या करता है? HCl makes the food acidic. ठीक है. ये खाने को एसिडिक बनाता है. ये स्टमक का एटमॉस्फेयर ही एसिडिक कर देता है, ताकि ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन हमेशा इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है. इट गेट एक्टिवेट एंड एक्ट ओवर द प्रोटीन्स एंड कन्वर्ट इनटू द अमीनो एसिड्स. ठीक है, ताकि ये खाने के ऊपर एक्ट कर सके और उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर सके. तो HCl का फंक्शन है, इट मेक्स द मीडियम एसिडिक. ओके. देन second, it sterilize the food. Sterilize the food means if supposed to be the food contain any kind of contamination, then just kill that contamination or clean the food for the digestion. ये हो गया HCl का function. After the HCl, second secretion called as pepsin. Pepsin means the kind of enzyme that is act over the proteins. It broken down the proteins, मतलब पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल इनटू सिंपल अमीनो एसिड. ठीक है, ये मॉलिक्यूल को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है. पूरी तरह तो डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड में और कुछ मॉलिक्यूल पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं. लेकिन पेप्सिन हमेशा इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है. इसको अगर एक्टिवेट होना है तो इट रिक्वायर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl. गैस्ट्रिक जूसेस का जो मीडियम है वो एसिडिक होना चाहिए, तब जाके पेप्सिन क्या होता है, एक्टिवेट होता है. एंड दैट पेप्सिनोजिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स. ओके. द नेक्स्ट secretion of stomach or gastric juice, it is called as mucus. Mucus, it is a kind of secretion of mucus gland. That mucus gland secrete the mucus. It is somehow sticky fluid that is generally spread over the complete inner walls of the stomach and protect the stomach from its own secretion of hydrochloric acid. ये अपने खुद के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन से स्टमक की ग्लैंड्स को और स्टमक की इंटरनल वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है. मतलब म्यूकस जनरली स्टमक की इंटरनल वॉल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. एज दैट फूड गेट कन्वर्ट फ्रॉम बोलस टू सेमी पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, अब ना तो पूरी तरह लिक्विड है ना तो पूरी तरह सॉलिड है. स्टमक कॉल्ड एज चर्निंग ऑर्गन. ये खाने को चर्न करता है, डाइजेस्ट करता है और जैसे टूथपेस्ट का पेस्ट होता है ऐसे पेस्ट लाइक मैनर में कन्वर्ट कर देता है. आफ्टरवर्ड इट जस्ट पासेज द स्टमक फ्रॉम स्टमक टू डियोडिनम. इट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को पास करता है. अब स्टमक जे शेप ऑर्गन है एंड मेड बाय 3 डिफरेंट पार्ट. ठीक है, बीच का पार्ट है कार्डियक, ये पार्ट है फंडस और ये पार्ट है पाइलोरस, मतलब पाइलोरिक पार्ट. इस पाइलोरिक पार्ट में जनरली एक स्पिनेक्टर लगा हुआ होता है, इसको बोलते हैं पाइलोरस स्पिनेक्टर. एज दैट पाइलोरस स्पिनेक्टर pushes the food into the duodenum, means small intestine, then the food is never come back to the stomach again. Okay, once that food enter in a duodenum, it slowly passes into small intestine. देखो, small intestine, it is the site at which the complete digestion of food takes place. इस small intestine में नाम तो है small intestine, but it is the largest or longest part of alimentary canal. In case of adult, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ नियर अबाउट 6.5 to 7 मीटर्स लॉन्ग होती है. अंडरस्टूड ना. और ये
कंप्लीट डाइजेशन, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है फूड का. इवन नॉट ओनली डाइजेशन, द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज ऑल्सो टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. देखो स्मॉल इंटेस्टाइन itself secrete its own secretions called as intestinal juices. ये intestinal juices फूड को पूरी तरह डाइजेस्ट करता है. स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है. अंडरस्टूड. इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब लीवर एंड पैंक्रियास बोथ आर रिलीजेस देयर सिक्रीशंस. ठीक है, ये अपने एंजाइम्स को भी यहाँ रिलीज करता है. अब देखो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर क्या सीक्रेट करता है? इट इज कॉल्ड बाइल. क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूसेस. बाइल जूसेस मीन्स these are the juices or the secretion of greenish color secretion of liver that generally forward through the bile duct into the pancreatic duct. और यहाँ से इस डक्ट को बोलते हैं हिप्पोपैंक्रियाटिक डक्ट that forward the secretion of pancreas and liver into the duodenum. It is the starting of the small intestine. ठीक है, it is C-shaped tube. इसको बोलते हैं duodenum. और ये duodenum इनके secretions को रिसीव करता है. अब बाइल का क्या काम है? देखो बाइल एक तो जो फूड स्टमक से आया है वो फूड था एसिडिक, उस फूड को अल्कलाइन करने का काम करता है. क्योंकि जब तक फूड अल्कलाइन नहीं होगा तब तक इंटेस्टाइन के जूसेस और पैंक्रियास के जूसेस उन फूड को पे एक्ट नहीं हो सकते. अंडरस्टूड ना? मीन्स they are get activated only in the alkaline medium. Because of that it is need to be convert the food from acidic medium to alkaline medium. Okay, अब बाइल का एक फंक्शन है कि एसिडिक फूड को अल्कलाइन कर देता है. कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में. एंड सेकेंड वन, इट इज वेरी इसेंशियल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. ठीक है, हायर लिपिड मोलिक्यूल्स को, हाईली कंपाउंड लिपिड्स मोलिक्यूल को स्मॉल ग्लोब्यूलर फॉर्म में इमल्सिफाइड करने का या कन्वर्ट करने का काम बाइल करता है. बाइल एक्ट ओवर द fats molecule or lipid molecule and convert them into small globular form. Okay, ताकि means because of that other enzymes easily get convert the fats into the fatty acid, मतलब insoluble form to soluble form. Okay, तो ये हो गया बाइल का और लीवर का सिक्रीशन. अब देखो लीवर सिक्रीट their secretion bile. It release the bile inside the pancreatic duct. If supposed to be there is no food inside the stomach. अगर स्टमक में खाना नहीं है तो इस बाइल को वापस लीवर की तरफ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. लेकिन वो लीवर में जाता है क्या? नहीं. तो वो स्टोर किया जाता है इनसाइड द बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर उस बाइल को अपने अंदर स्टोर करके रखता है और उसको और प्यूरिफाइड और मोर कॉन्सेंट्रेट बनाने का काम करता है ताकि वो खाने पे अच्छे से एक्ट हो सके और खाना डाइजेस्ट हो सके. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट ग्लैंड है पैंक्रियाज. पैंक्रियाज इट इज अ लीफ शेप ग्लैंड जनरली प्रेजेंट बिटवीन द इंटेस्टाइन एंड द स्टमक. ठीक है, पैंक्रियाज जनरली मिक्स ग्लैंड है. ये अपने आइसलेट्स ऑफ लैगरहैंस से बीटा सेल्स का फॉर्मेशन, बीटा सेल्स कंसिस्ट करता है और ये बीटा सेल्स इंसुलिन का भी सिक्रीशन करता है. ठीक है, और तो यहाँ पर जनरली दोनों फंक्शंस, लेकिन डाइजेशन में पैंक्रियास का जो फंक्शन है वो एक्सोक्राइन है. एक्सोक्राइन फंक्शन में पैंक्रियास 3 टाइप के एंजाइम सिक्रेट करता है, लाइपेज, ट्रिप्सिन और अमाइलेज. ठीक है, ये तीनों भी एंजाइम्स जनरली इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं. एज bile gets secrete and make the medium alkaline, then all these 3 enzymes get activated and act over. लाइपेज किस पे एक्ट होता है? देखो लाइपेज एक्ट होता है फैट्स पे, मतलब लिपिड पे. क्या बनाता है? फैटी एसिड. क्या बनाता है? फैटी एसिड. कौन बनाता है भाई फैटी एसिड? तो लाइपेज. लाइपेज कन्वर्ट द फैट्स इनटू फैटी एसिड, मतलब इट डाइजेस्ट दैट. देन ट्रिप्सिन एक्ट ओवर द प्रोटीन्स. किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? प्रोटीन्स पे. क्या बनाएगा? अमीनो एसिड्स. और अमाइलेज किस पे एक्ट होता है? स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट पे, और बनाता है ग्लूकोज. ओके, इन दैट वे
that the food completely get digested inside the the small intestine of alimentary canal. Okay, and the digested food as move forward. ठीक है, ये डाइजेशन के साथ साथ खाने को आगे की तरफ पुश भी करते जाता है. ये हो गया प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन केस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट स्टेप को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन. देखो एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, ऐसे ही आप लोगों को बोल दूं तो देख, एब्जॉर्प्शन मीन्स इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल. सी द नेक्स्ट स्टेप इट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन. फोर्थ स्टेप, थर्ड, सेकेंड डाइजेशन था, थर्ड है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. हाउ द एब्जॉर्प्शन गेट टेक्स प्लेस. देखो एब्जॉर्प्शन के लिए द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेस्टेड फूड इनसाइड द ब्लड, इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. कहां पर होना है एब्जॉर्प्शन? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होना है. स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज द लार्जर एरिया. कितना होता है? नियर अबाउट 7 मीटर्स लॉन्ग. ठीक है, 6.5 to 7 मीटर्स लॉन्ग. ये डिपेंड करता है ऑन द हाइट ऑफ अ पर्सन. अब 7 मीटर लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इनर सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इट इज अ ल्यूमेन. Inside that lumen, the inner membrane of small intestine having the finger-like projection. Likewise, okay, this finger-like projection again having the small areas over it. It is called villi, and these are called microvilli. क्या बोला जाता है इनको? तो ये हो गया इनर एरिया, inner membrane of small intestine. It is the outer membrane. As that food get passes from that small intestine, तो इसका एरिया कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा. जब फूड यहाँ से मूव करता है तो ये फूड क्या होता है, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. द डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब inside that area. Means small intestine created the large surface for absorption of digested food. It means that large area for large absorption of digested food inside the blood. The blood vessels means blood capillaries are present here. These capillaries absorb the digested food inside them and take it to all the parts of the body. In that way, the process of absorption takes place inside the blood from the small intestine. इसको बोलते हैं absorption. Up the next process of nutrition in humans is it the fourth process called as assimilation. ठीक है, after the absorption, the next process it is called assimilation. Assimilation मतलब क्या? Assimilation means there is a the transported food that get absorbed inside the cells, and the cell utilize that food to obtain the energy as well as for their growth. This process is called assimilation. Assimilation means simply utilization of digested food inside the cell. ठीक है, हमारे बॉडी के each and every component में means each and every cell में for their metabolic activities that digested food get used or utilized to produce the energy or perform the life processes. It is called assimilation of the food. Means the digested food from the small intestine, जो digested food था, it is get absorbed inside the blood and transported to all the parts of our body. Means all the parts of our body, means each and every cell. Okay, and these cells utilize that food. Assimilation means the absorption of digested food from the blood inside the cells, and that digested food or absorbed food inside the cell utilized to produce energy by means of respiration. That digested food get oxidized inside the cell, release the energy, and also use that food for the growth of the organism. It is called assimilation. Human being में इस तरीके से assimilation होता है. After assimilation, the last process it is called egestion. Okay, egestion it is the last process of nutrition in case of human being. Egestion means what? Egestion means simply removal of waste outside the body.
रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट आउटसाइड द बॉडी. ठीक है. अब इजेशन की प्रोसेस कैसी होती है? तो इजेशन की प्रोसेस इट्स ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू द एनस. ठीक है. एलिमेंट्री कैनाल में ही होती है. फॉर द इजेशन as the digested food passes from the small intestine, that digested nutrients or the component of a food get absorbed inside the blood. But undigested component or undigested food passes into the from the small intestine and throw into the large intestine. Large intestine, it is a that inverted U-shaped tube that carry undigested food up to the rectum. कहाँ तक कैरी करके ले जाता है? रेक्टम तक. अब इस कलोन में से जब फूड पास होता है तो put that thing in your mind, large intestine never take part in the process of digestion, but with that undigested raw material, whichever means amount of water is available, that extra amount of water get absorbed from the large intestine into the blood, and that fecal matter or the undigested food gets solidified inside the large intestine and later on passes to the rectum. ठीक है. Means for a short period large intestine just convert that undigested food in the form of stools or fecal matter and then passes to the rectum. Rectum में ये अनडाइजेस्टेड फूड शॉर्ट पीरियड के लिए स्टोर किया जाता है एंड आफ्टरवर्ड रिलीज दैट फूड थ्रू द एनस आउटसाइड द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड एज इजेशन. इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट आउटसाइड द बॉडी एंड इन दिस मैनर बाय मीन्स ऑफ परफॉर्मिंग ऑल दीज 5 phases or steps like ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion, human being also shows holozoic mode of nutrition. Okay.